स्टार्ट कर। Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So we are discussing the important topics from 18th of October newspaper. So firstly is regarding development and its discontents. So is it really only development, or as we talk about growth versus development? So development has to be equitable, it has to be sustainable. So in this picture also you can see that firstly the mangroves, but this is an abandoned board, so mangroves they have been cut, the trees have been cut, so deforestation is one thing or the challenge, and even the wetlands, no longer they are functional and in a healthy state. Apart from this, like this is an example of Mumbai. So in this picture also, like when we're talking about the Jawaharlal Nehru Port Trust, it's a coastal city. And even again, this entire coast is having important strategic locations also, like Nhava Sheva or the Jawaharlal Nehru Port Trust, which is India's largest port. And then Madh Island is also located here. So Mumbai and Navi Mumbai. So when we're talking about the smart cities development, what about the development when it comes to the outskirts region, or when it comes to the sustainable development in terms of conservation of the biodiversity? So is it really being done in a sustainable manner is the question over here. So mangroves, they've been cleared for the flyover construction. So importance of environment impact assessment, that is missing over here. Portions of the project, they have been encroached on residential areas. So we ourselves, we are giving again rise to urban flooding because of again more concretization or encroachment of even again the floodplains at the same time, where we go ahead with the construction activities, so threatening the homes, the ancestral lands. Despite numerous letters to even the BMC, which is again the municipal corporation, the pleas, they have gone unheard. So this is one of the case studies that we can again talk also. So government's response. So first is the Forest Survey of India's report. It states that there are 186 square kilometers of mangrove land in Maharashtra. 8 years later, we say that the count they went up, but there has been a significant increase in the mangrove cover. So we need to look into again whether this is in sync with reality or the situation, the ground level or not. So these are the major issues that we can say have been highlighted in this article. So इसमें इम्पोर्टेंट। हाँ, बोलेगा कंप्लीट कर। मैंग्रोव्स, हाँ मैंग्रोव्स में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वी आर सीइंग दैट हाउ मैंग्रोव्स आर बीन प्रिजर्व्ड, द लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इवन दे आर बीइंग, we can say, generated at the same time, but that is not hampering the entire ecosystem of the mangroves. No, I think there's the Mishti program, which is regarding the mangroves conservation and the symbiotic relationship that we talk about. हम्म इसमें पहले इसमें एक और अच्छा की एस्पेक्ट लिया है। बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जो फिशिंग कम्युनिटीज थे दे यूज टू फिश नियर बाई, लेकिन अब बहुत दूर जाना पड़ता है। दिस शोकेसेस कि कैसे जो जनरेशन ऑफ कोलीज ट्राइबल, जो इसका क्वेश्चन पूछा था ना विथ Hmm. रिगार्डिंग टू EIA इम्पैक्ट और कैसे इम्पैक्ट करता है प्रोजेक्ट, तो इस एग्जांपल लेके दे आर रिलाइंग ऑन द फिशिंग फॉर सर्वाइवल। लेकिन आज मैंग्रोव जो है वो बहुत दूर हो चुके हैं और कहीं ना कहीं दे आर स्ट्रगलिंग फॉर फिशिंग। दिस शोकेसेस कि मैंग्रोव हाउ इट इज क्लियर्ड और कैसे इट इम्पैक्ट्स लाइवलीहुड ऑफ ईस्ट इंडिया क्रिश्चियन कोलीज ट्राइबल कम्युनिटीज। तो क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर एक कीवर्ड लिखा हुआ है, विलेज वेलफेयर एसोसिएशन हैव मेड अपील्स टू द सिविक बॉडी। राइट साइड का सेकंड पैराग्राफ, विलेज वेलफेयर एसोसिएशन है विथ रिगार्डिंग टू द सिविक बॉडीज हो गया। फिर तो यहाँ important facts भी ट्राइबल हेमलेट और उसको, हाँ, वेटलैंड, बाकी वेटलैंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। और नीचे में राइट साइड कॉलम लिखा हुआ है रिगार्डिंग टू द मैंग्रोव सेल had initiated conservation measures। उसके बाद मैंग्रोव सुरक्षा ऐप, थर्ड पैराग्राफ, allow citizen to lodge complaint about the road wrongdoing in the mangrove region। मैंग्रोव सुरक्षा ऐप और so we can talk about even the ecological sensitive zones identification and how much human activities are we allowing there. So whether that is being complied. Then, like for the fishing community, we have the Sampada Yojana. So coastal cities or coastal metropolitan areas में हम बात कर सकते हैं development of the blue economy.
सो दैट्स इम्पोर्टेंट, चाहे पोर्ट हो, फिशिंग कम्युनिटी हो, मैनग्रोव्स की बात हो, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज हो, एंड एट द सेम टाइम डेवलपमेंट इज ऑल्सो हैपनिंग. So on the exception to the marital rape, so we have discussed on this topic several times, कि marital rape, whether this should be a crime or not. So as of now, even जो new 3 criminal laws आए, उसमें this is not a crime. But यहाँ पे अगर हम again we look back to several incidents and Supreme Court judgments. So there's been this exception, which is again marital rape is not a crime. So that is the exception. So Supreme Court in the Joseph Shine versus Union of India case है 2018 का. So here we are talking about the doctrine of coverture. So it curtailed a married woman's legal autonomy. But before talking about again like wife and husband, we need to first think about rights of an individual, rights as an human. So that's there, and the very being or the legal existence of woman is suspended during the marriage, or at least is incorporated and consolidated into that of the husbands. सो इक्विटी वाले एंगल की जब बात आती है या जब हम कंसेंट की बात करते तो दैट इज सीन टू बी मिसिंग हेयर. बट एट द सेम टाइम इफ दिस बिकम्स अ क्राइम, then we need to see how we will be safeguarding the institution of marriage. How we'll be looking into जो fake और जो false allegations हैं, how that is going to be identified and investigate कैसे करेंगे, that is going to be the challenge. So Article 14 की यहाँ बात हो रही है, guarantees equal protection of laws to all the persons. So even in this case, is it like being implemented in such a manner or not is the question that arises. Article इसमें दो 14. टाइप्स में इसमें है कि पहला तो कि अनमैरिड वुमेन और मैरिड वुमेन के बीच में डिस्टिंक्शन किया गया है, तो ये भी हम्म. एक तरह से आर्टिकल 14 का वॉयलेशन बोल नहीं सकते, लेकिन क्वेश्चन उठाता है. दूसरा बात है कि मेल और विमेन के बीच में डिस्टिंक्शन किया हुआ है कि ओनली विमेन इज केपेबल ऑफ, मेनली इज केपेबल ऑफ रेपिंग द विमेन. उल्टा नहीं है, तो मेन का कोई कंसेंट का बात ही नहीं किया गया इसमें, तो ये भी इसमें क्वेश्चन उठता है. दूसरा फिर इसमें बात होता है कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे कंसेंट कैसे देगा. इट इज अनएथिकल इमोरल मैरिटाइल रेप, लेकिन कैसे कंसेंट प्रोसेस क्या होगा, कैसे होगा, वो डिटरमाइन कैसे करे, वो तीन एस्पेक्ट हमको लगते हैं इसमें. हम्म. अपार्ट फ्रॉम. और previously even Madras High Court also stated कि rape is a rape irrespective of the relationship between man and woman. So उस एक पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं. तो बहुत सारे प्रेसिडेंट्स है, जैसे यहाँ पे एक और केस लिखा हुआ कर्नाटका हाई कोर्ट इन दी ऋषिकेश साहू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस ruled that married man can be prosecuted for raping his wife. So then JS Verma committee is there, recommended the abolition of the MRE. MRE, what is MRE? Marital rape ही होगा आई थिंक. हाँ वही होगा. Hmm. The pivotal question before the top court is whether striking down this MRE would result in the creation of a new offense, as it would allow for the prosecution of husbands who engage in non-consensual sex with their wives. तो यही है marital rape exception. Colonial relic है, तो even जब हम मतलब decolonize, नेगेटिव टोन में लिखा हुआ है ना, हाँ, मैरिटल रेप एक्सेप्शन नेगेटिव है. originates, एक्सेप्ट दिया गया था कि इसको रेप नहीं कहलाया जाएगा, तभी हाँ, एक्सेप्शन that, है. हाँ, इसको इसीलिए. रिमूव करना ही बेसिकली प्रोग्रेसिव होगा ना. हम्म. तो हाँ, दूसरा इसमें एक और दिया था. हाँ, तो हम लोग तीन तीन बात किया ना इसमें, क्या क्या इशू है. चौथा है कि इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट द रेप बिटवीन द LGBTQ कम्युनिटी. उसमें किस पर लगेगा, फॉर हम्म. एग्जांपल गे गे लेस्बियन लेस्बियन या किसी बाइसेक्सुअल में किस पे होगा, तो वो भी कुछ तो आर्टिकल 375 IPC और बाकी जगह है. ये भी है, तो इट चार विल, है. हाँ, इट इज अ वायलेशन द राइट टू तो हाँ, प्रिवेसी बॉडीली. अगर आप कंसेंट करेंगे तो हो सकता है कि जो आम घर का मामला है वो बाहर जाए, हो सकता है ऐसा. तो एक पांच एस्पेक्ट आ गया कंसेंट, और वो फाइव एस्पेक्ट इज रिगार्डिंग टू. तो बाकी कंट्रीज में है, तो बाकी इंग्लिश ब्रिटेन में भी हटा दिया गया था. एंड 1736 में लाया गया था वहाँ पर कि हस्बैंड कैन नॉट बी मेड गिल्टी ऑफ रेप, लेकिन 1991 में इट हैज़ आउटलॉड इन द लैंडमार्क केस ऑफ R वर्सेस R. 1991 में फिर US में भी आउटलॉ किया गया बाकी जगह. So there it is a और crime दूसरा ना इसमें बात आपने. होता है कि जो वुमेन है उसका भी जो हर एक सिविल कोड का अलग अलग है. फॉर एग्जांपल एक पंजाब हाई कोर्ट बताए थे कि इन सर्टेन कम्युनिटी 15 ईयर्स ऑफ एज
लीगल शादी करने, और लेकिन किसी किसी में 18 ईयर्स है। तो हम्म। ये भी एक एस्पेक्ट आता है जो हाँ, एज और बाकी सिविल कोड है। ambiguity, right? So doctor strike reveals how apathy to health pushes people into poverty. तो हमने फर्स्टली तो स्ट्राइक के बारे में, जो सैमसंग वर्कर स्ट्राइक हुआ था या एम्प्लॉय स्ट्राइक किया था, उसमें हमने बात करी थी कि कलेक्टिव राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग और फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। सो राइट टू स्ट्राइक नहीं है आपके पास, यू हैव द राइट टू प्रोटेस्ट। बट व्हेन इट कम्स टू अगेन फॉर्मिंग द लेबर यूनियंस एंड जो हमने कलेक्टिव बार्गेनिंग राइट्स की बात करी, तो ओवरऑल जो हम हाँ रिफॉर्म्स सर, यू की हैव बात। राइट टू स्ट्राइक बट इट शुड बी गिवन प्रायर टू द स्ट्राइक। फॉर एग्जांपल 15 डॉक्टर के पास नहीं है, लेकिन बाकी के पास है कि 14 राइट 14 डेज टू पहले भी था, प्रोटेस्ट डॉक्टर है के ना, पास के पास राइट टू प्रोटेस्ट है, राइट टू स्ट्राइक नहीं है। इवन जब भी जो आप बोल रहे हो कि पहले यू हैव टू गिव इन राइटिंग, तो उसमें भी आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, कांट गो आई थिंक स्ट्राइक, एक बार वेरीफाई कर लेंगे। बट फंडामेंटल है। राइट की मैं बात कर रही हूँ, फंडामेंटल राइट टू प्रोटेस्ट है, फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक नहीं है अंडर आर्टिकल 19। सो इट इज रेजिंग लिमिटेड क्वेश्चन। राइट टू स्ट्राइक है। ट्रेड यूनियन एक्ट 19, हाँ मतलब उसमें नहीं है, आर्टिकल 19 में नहीं है, राइट टू प्रोटेस्ट राइट टू स्ट्राइक नहीं है, लेकिन लिमिटेड एक्सटेंट है। फॉर एग्जांपल 1947 एक्ट बाकी जगह भी डिफरेंशिएट किया है लीगल स्ट्राइक और इलीगल स्ट्राइक। हम्म। तो और इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट में भी लिखा हुआ है कि सर्टेन लिमिटेड राइट टू स्ट्राइक है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं बताया राइट टू स्ट्राइक, लेकिन लॉज के अंदर में लिमिटेड फॉर्म दिया गया बस ये। लेकिन डॉक्टर्स का आई थिंक नहीं, डॉक्टर्स का नहीं होता। हम्म। तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्राइक की एक बात हो रही है, उनके अपने कंसर्न्स और डिमांड्स है, और वर्सेस यहाँ पे दिखा है एपैथी टू द हेल्थ पुशेस द पीपल इनटू पॉवर्टी। सो एक ये एस्पेक्ट भी है कि इफ डॉक्टर्स आर ऑन स्ट्राइक, तो पीपल हु नीड their attention or their services, तो it also pushes them in a way into poverty। तो एक ही एस्पेक्ट है यहाँ पे। So 75% doctors they have been exposed to harassment। तो harassment, physical violence is again जिसके अगेंस्ट वो स्ट्राइक और प्रोटेस्ट कर ले, लार्जली ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिसिन, लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं। तो कैपेसिटी डेवलपमेंट की बात आ जाती है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज देयर। सो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव स्वेप्ट दीज इश्यूज अंडर द रग। तो हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं देयर इज अगेन पॉलिटिसाइजेशन आल्सो एट द सेम टाइम, जैसे लिखा है ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज वन ऑफ द इश्यूज। एंड सेकेंडली इंडिया का जो एक्सपेंडिचर भी ओवरऑल हेल्थ केयर पे, वी हैव बीन कॉन्स्टेंटली talking about this thing, it needs to be increased at least to 5% of the GDP. Right now, it is only 2% of the GDP. Like Cuba, it spends 14%. And India, state-led apathy had allowed private sector to capture. So private sector, India के healthcare sector में it is 70% टोटल है। तो पब्लिक हेल्थ केयर, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं एट द ग्रास रूट लेवल, दैट नीड्स टू गो। और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनका रोल और इंक्रीज होना चाहिए, उनकी डेंसिटी और इंक्रीज होनी चाहिए। बट खाली डेंसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन से भी वी कांट से कि क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर इंक्रीज होगा। सो उसमें कैपेसिटी डेवलपमेंट की हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ मेडिकल एजुकेशन की एक एस्पेक्ट हो जाएगा कि उसमें कैसे हम, एक तो कॉस्ट एस्पेक्ट है उसमें भी, वी हैव सीन सेवरल इश्यूज रिलेटेड टू करप्शन एट द सेम टाइम, या लिमिटेड सीट्स है, या इवन जब हम एग्जाम्स की भी बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो there also like Public Examination Act 2024 that has been introduced। And then state level pe there are different schemes at the same time, like West Bengal mein there's schemes, even they also fizzled out, like Swasthya Sathi, Bengalis they were enthusiastic about the Kanya Shri scheme, where the state mooted in 2013 to increase enrollment of girls in the school using conditional cash transfers। So how we can increase again enrollment of girls and women in the medical education? Apart from this, Niti Aayog, they have estimated the cost of treatments had pushed nearly 7% of the national population into poverty। तो यहाँ out of pocket expenditure की बात कर रहे हैं। Although अगर हम trend की यहाँ बात करते हैं तो it is declining, but still it is not reached that competitive level जो हम चाहते हैं। तो this is another challenge that we can talk about। And recent we know कि वेस्ट बंगाल जो रेप इंसिडेंट हुआ, तो सेफ्टी ऑफ वुमेन डॉक्टर्स इज अनदर चैलेंज। सो इंटायर ओवरहॉल इज नीडेड एट डिफरेंट लेयर्स एंड डिफरेंट स्टेजेस, चाहे वो एजुकेशन की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की बात करते हैं, सेफ्टी ऑफ डॉक्टर्स की बात करते हैं, द प्रेशर, द मेंटल हेल्थ ऑफ इवन द mental health of the doctors is another area that needs attention। So I think
ये कुछ एरियाज है जहाँ पे आप औशक अगर ऐड करो तो एक यहाँ पे बस विसल ब्लोअर्स है, तो विसल ब्लोअर्स एक्ट इंडिया में है, 2014 में आया था, बट अभी तक उसके रूल्स नहीं आए हैं, तो इट लैक्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। तो डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो की भी हम यहाँ बात करते हैं, जैसे हमने सुरजुगा मॉडल की बात करी थी, पर्टिकुलरली हाउ इट हैज बीन सक्सेसफुल छत्तीसगढ़ में इन डीलिंग विद द अनीमिया केसेस। तो देयर स्क्रीनिंग इज इम्पोर्टेंट, एंड अगेन वहाँ पे डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो ज्यादा था, तो दैट इज वाई इट टर्न्ड आउट टू बी सक्सेसफुल। सो कैसे हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, can be another aspect. So Indian Medical Association, it said 75% of doctors in India have at some point been exposed to harassment or the physical violence. तो ये केस कुछ ऐसा है, लाइक जैसे वुमेन्स के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट के नंबर्स हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स के साथ भी सिमिलर केसेस हुए हैं, नंबर्स हैं। हम्म। स्कीम्स हैं जो हेल्प कर रही हैं रिड्यूसिंग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, लाइक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इज देयर, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो, एंड मतलब इसमें बात हो रहा है ना कि आपके पास डॉक्टर्स भी हैं, नंबर ऑफ डॉक्टर्स हेल्थ केयर है, लेकिन फिर लोअर है अर्बन एरिया से। दूसरा, जूनियर डॉक्टर, हमेशा हम लोग डॉक्टर लिखते हैं, लेकिन की एस्पेक्ट जूनियर डॉक्टर हो, दे ऑल्सो कंप्लेन कि उनका वर्क टाइम बैलेंस का इशू है। कभी भी उनको बुलाया जाता है सीनियर डॉक्टर अंदर काम करने के लिए। और दूसरा कि इक्विपमेंट अवेलेबल है, लेकिन लैक ऑफ स्किल्ड ऑपरेटर नहीं है। फिर दूसरा कि व्हेन फ्रेशली मिंटेड डॉक्टर्स आर डेप्यूटेड टू द वर्क इन दिस सेंटर्स, तो दे आर एक्सपोज टू पेशेंट एंड देयर फैमिली फ्रस्ट्रेशन, तो फ्रस्ट्रेशन उनको झेलना पड़ता है। तो जो डॉक्टर्स, तो एक क्वेश्चन उठता है कि इंडियन मेडिकल सर्विस जैसे आईआरएस हो गया, आईएएस हो गया, ऐसा इंडियन मेडिकल सर्विस कर सकते हैं? एक कैडर ऑफ डॉक्टर्स दैट कैन बी, ऐसे भी तो डॉक्टर एक गवर्नमेंट डॉक्टर हैं जो अर्बन एरियाज में उनका पोस्टिंग होता है, रूरल में भी होता है। तो कैडर ऑफ डॉक्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, इट विल अमाउंट टू इंक्रीज रेगुलेशन इन हेल्थ केयर एरिया। फिर करप्शन का भी एग्जांपल है इसमें, कि विशन ब्लोअर और उसे कैसे बढ़ा सकते हैं लोग। और हेल्थ केयर सिंडिकेट जैसे लिखा हुआ है कि वेस्ट बंगाल हॉस्पिटल्स में कैसे सिंडिकेट वर्क कर रहे हैं, तो दैट लीड्स टू करप्शन। और ट्रांसपेरेंसी हम्म, इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी ऑन द सेम थिंग, द सेक्टर स्टेक होल्डर्स एम्प्लॉयज टू कम फॉरवर्ड एज विसल ब्लोअर्स टू स्टेम द रॉट। हाँ। So Parkinson's disease is again a neurological disorder related to again the state of mind. So studies suggest that gastrointestinal dysfunction may precede the onset of the motor symptoms. Motor is again related to our functioning of nervous system. So gut brain connection की यहाँ बात हो रही है। बाकी we can say that can we say that this is a rare disease? तो बोल सकते हैं rare disease है, तो rare diseases को हम orphan diseases भी बोलते हैं। And so our healthy and active lifestyle is again ultimately solution जो health care, चाहे वो non communicable diseases हो या even communicable diseases, so it relates to आपकी immunity कितनी strong है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें भी हम अगेन कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर की बात कर सकते हैं, तो जेनरिक मेडिसिन, स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स इंपॉर्टेंट है, तो रोल ऑफ सीडीएससी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड पर्टिकुलरली लाइक इन टर्म्स ऑफ जैसे हमने ऑर्फन डिजीजेस की बात करी, तो वहाँ पे भी वी से कि क्या वो फ्यूचर में भी ऑर्फन रहने वाले हैं, वेदर लाइक दे आर गोइंग टू स्टे इन लिमिटेड नंबर और नॉट इज अ क्वेश्चन। सो आर वी प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर पैंडेमिक्स, तो वो भी एक एंगल यहाँ पे आ सकता है। So in this case, recently Niti Aayog also released a report regarding the same कि preparedness level के लिए we need to have again vaccine bank होना चाहिए हमारे पास, we need to have a proper FEMA law जो again हेल्थ केयर वर्कर्स या फिर जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनकी रोबस्टनेस को इंक्रीज करे, और हेल्थ केयर कैडर्स के अकॉर्डिंग वी नीड टू create such types of cadres as front line workers, एंड में वही होने वाले, so they need to be better trained. हम्म। ओके, न्यू लेडी जस्टिस की यहाँ बात हो रही है। सो न्यू तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर या जो स्टैचू बनाया गया है, बट इसको हम इंटरप्रेट भी कर सकते हैं कि विद अगेन द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग नंबर ऑफ क्राइम्स या इवन जुडिशियल पेंडेंसी, तो न्यू लेडी जस्टिस वी कैन से दैट विद द हेल्प ऑफ लाइक टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मोर डिजिटाइजेशन, या हम ई कोर्ट्स की बात करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द जजमेंट्स की बात करते हैं, तो एक वो एस्पेक्ट हो सकता है विद दी विच वी कैन कनॉट विद द न्यू जस्टिस और ट्रांसफॉर्मेटिव जस्टिस, मोर वाइडर जस्टिस।
तो आप इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे? तो गॉडेस ऑफ जस्टिस हम बोलते हैं। तो इसमें मेरा स्टैंड पॉइंट थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आई विल अग्री विद द सुप्रीम कोर्ट। मतलब इसमें इसको एक एग्जाम्पल है कि कैसे इंडिया में हम, मतलब मेरा अपना स्टैंड पॉइंट है इसमें, ठीक है। हम्म। एग्जाम्पल है कैसे इंडिया में जो एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ फीचर्स आइकोनोग्राफी होता है इसको यूज़ करता है, थोड़ा ट्विक करते हैं और उसको बोल देते हैं डीकोलोनाइजेशन। हमारे यहाँ भी वेरियस स्टैंड थे यहाँ पर। फॉर ए बुक है, मेरा क्रिटिसिज्म इसका है कि हाँ बुक है यहाँ कौन? पर लेकिन स्वॉट नहीं है। तो इसमें कोर्सिव पावर ऑफ या पिनलाइजिंग नहीं दिखा है, बैलेंसिंग कर रहे हैं, लेकिन बुक से आप थोड़ी जेल भेज सकते हो। अब मतलब लॉज है लेकिन देर इज अ कटन, थोड़ा सा एस्थेटिक वैल्यू, या फिर आप जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है अपना, हमारे पास भी है कि वो एक हाथ में वज्र होता, एक हाथ में बुक होता, दूसरा हाथ में स्वॉर्ड होता, दूसरा हाथ में फिर तराजू होता, चार हाथ होता। ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, हम लोगों को सेम यूज करना है लेकिन थोड़ा ट्विक करना है, दिखाने के लिए कि हम लोग लेडी जस्टिस ब्लाइंड थी क्योंकि शी वॉज नॉट डिफेयरिंग, कि वो ब्लाइंड जस्टिस के लिए नहीं था। शी वॉज नॉट सीइंग एनी वन एज इंडिविजुअल, कि वो विमेन से है, कि वो मेल है, कि वो एलजीबीटी से, कोई चीज़ हर के लिए इक्वल था। लेकिन अभी पता नहीं उसका। बट अगेन यहाँ पे हम इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं पॉजिटिवली कि इफ शी इज नॉट ब्लाइंड मैं तो फोल्ड। पॉजिटिवली करूंगा जनरली, मतलब बाद में, लेकिन मैं बता रहा हूँ मेरा अपना स्टैंड पॉइंट, ये क्रिटिसिज्म ही है एक तरह से। सो यहाँ पे शी इज लाइक होल्डिंग स्केल्स और बाकी कॉन्स्टिट्यूशन इन हर हैंड इंस्टेड ऑफ अगेन शी नॉट बीइंग ब्लाइंड फोल्डेड एंड नॉट हैविंग स्वॉर्ड। तो ठीक है, इंटरप्रिटेशन। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के यहाँ पे डिबेट है, तो मॉडिफाइड यूबीआई पॉलिसी में बी मोर फिजिबल। सो अगेन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फर्स्ट इकोनॉमिक्स या फिर जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेन आते हैं उसी के रिगार्डिंग हम फिस्कल कंसोलिडेशन की भी बात करते हैं कि हम फिस्कल डेफिसिट को कैसे कम करें, एट द सेम टाइम वी आर नॉट हैम्परिंग द पेस और द मोमेंटम ऑफ ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट्स इनटू in the form of capital expenditures. So universal basic income, if we go ahead with this, firstly so we need to have again proper assessment and planning for this. How desirable is it to get this thing implemented in India? How successful or effective can it prove to be in terms of again poverty alleviation, if that is one of the main reasons going ahead with this, because that is again one of the cases. And यहाँ पे बात हो रही है again recent report of ILO talks about how jobs growth has been lagging globally. So again universal basic income होगा तो how it will be again जो हम trade off की बात करते हैं between work and leisure, how that is going to get चेंज या वो उसमें कैसे चेंजेस आने वाले हैं, बिकॉज दैट कैन इम्पैक्ट द ग्रोथ ऑल्सो। अगर हमें वी सी लेस पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सल बेसिक इनकम, या फिर पीपल आर गोइंग टू एक्सेप्ट दिस एज अ सप्लीमेंटल फॉर्म ऑफ इनकम, एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द अमाउंट जो हम फिक्स करने वाले हैं उसको कैसे डिसाइड करेंगे, वेदर दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम, बिकॉज यूनिवर्सल की बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ या तो पूरी पॉपुलेशन को कवर करेगा या इट इज गोइंग टू बी यूनिफॉर्म इन मैनर। सो दैट इज अनदर एस्पेक्ट। And implementation में again jam trinity we have in terms of ensuring कि the money reaches in people's bank account, and चैलेंज यहाँ पे ये है कि वैल्यू एडिशन ग्रोथ कैसे ही करने वाला है, बिकॉज अगर हम जॉब्स की बात करें तो देयर वर्क इज हैपनिंग, पीपल आर एडिंग वैल्यू, पीपल आर यूजिंग देयर स्किल्स। सो इसकी वजह से क्या डिजीज बर्डन और इंक्रीज हो सकता है, क्या पॉवर्टी रैली वी विल बी सीइंग लॉन्ग टर्म में, सस्टेनेबली पीपल विल बी मूविंग आउट ऑफ पॉवर्टी और नॉट, इज अनदर क्वेश्चन दैट वी कैन टॉक अबाउट। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो बाकी स्कीम्स हैं क्या हमें उनमें उनको रोकना पड़ेगा, उनको स्टॉप करना पड़ेगा, बिकॉज फाइनेंस हम कहाँ से अरेंज करने वाले हैं, बिकॉज और भी हमारी बाकी कमिटमेंट्स एंड टारगेट्स हैं, जैसे हम ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं तो देयर वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट कि हाउ टू जनरेट अगेन सस्टेनेबल फाइनेंस। तो आई थिंक ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे। अगेन स्टेट लेवल पे वी आर हैविंग डिफरेंट स्कीम, जैसे कालिया स्कीम है इन उड़ीसा, एंड नेशनल लेवल पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उसमें भी वी सी फाइनेंशियल बेनिफिट है। बट क्वेश्चन वही है कि साल में आप 6,000 दे रहे हो फार्मर्स को, तो उसको पहले हमें असेस करना चाहिए कि किसने उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल के आए हैं। सो 10 करोड़ फार्मिंग हाउस होल्ड कवर किए गए हैं, कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी रुपीज 75,000 करोड़, एंड ऑल्सो हाउ विल बी इंश्योरिंग कि दिस यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम इट रिमेन्स इन सिंक विद इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन। तो रियल टर्म्स में उस जो हम फाइनेंशियल बेनिफिट देने वाले, बेसिक इनकम प्रॉमिस करने वाले हैं,
टाइम के साथ वो भी आई थिंक इंक्रीज होती जाएगी, या हाउ दैट वुड बी मोर एक्टिवली इन टर्म्स ऑफ यू कैन से कि सिंक विद द राइजिंग इन्फ्लेशन, तो रियल सेंस में वो क्वेश्चन भी उठता है। कौशिक, आपको यहाँ कोई और डायमेंशन ऐड करना है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये लगता है कि जो यूबीआई है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, ये इन्फ्लेशनरी मेजर को कितना बढ़ा सकता है। और ये सबको तो इंक्लूड किया नहीं जाएगा, तो कैसे यूज वैल्यू क्या होगा। फॉर एग्जांपल बात किया ना, इंस्टीट्यूशन क्रिएट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अब हम्म। वो जो पैसा है वो सही में कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं कि कुछ और चीज़ में खर्चा हो रहा है। फॉर एग्जांपल कल ही झारखंड के अंदर में 75 पीपल हैव डाइड कंजम विद द यूज ऑफ कंजम्पशन ऑफ लिकर, इलीगल लिकर। तो वो भी एक कारण हो सकता है। क्या फिर पैसा किसको देंगे? विमेन को देंगे, मेल को देंगे? मेल को देंगे तो कैसे डिसाइड होगा कि विमेन को भी मिलेगा उसमें से? तो ये एक चैलेंजेस है इसमें हाँ, डायरेक्टली, क्योंकि क्योंकि स्कीम में, इंडिया में हाँ, स्कीम डायरेक्टली। में तो डायरेक्टली वो बेनिफिट मिल रहा है, लाइक कैश में हो या काइंड में हो, बट मोर इट इज इन टर्म्स ऑफ काइंड, तो ये भी हाँ। हाँ, इंडिया में मोस्टली काइंड मिलता है। पीडीएस हो गया काइंड हो गया, यूरिया काइंड हो गया। फिर एमएसपी जब स्टडी मिलता हो है जब गया। आपको। हाँ, तो स्टडी हो गया, वो भी काइंड हो गया। बाकी सब भी। पीएम आवास योजना, पैसा नहीं मिलता, आप बनाइए फिर आपको सब्सिडी मिलेगा, वो भी काइंड हो गया, प्रूफ है। इसमें कैसे प्रूफ होगा कि आप कहाँ का इस्तेमाल करो? हो सकता है वो आईफोन ले लिया तो। हाँ। राइट। यहाँ पे बेनिफिट्स भी लिखे हैं, यूनिवर्सल इनकम ट्रांसफर्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस, तो दे रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एसोसिएटेड विद टारगेटिंग एंड मिनिमाइजिंग द एक्सक्लूजन एरर, ये एक हो सकता है। सिंस द ट्रांसफर्स यूनिवर्सल होने वाले हैं, तो इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व दे वुड बी नॉट हैविंग एनी रोल, लोअर द चांसेस ऑफ लीकेज ऑल्सो। तो ये तो टेक्नोलॉजिकल जो हमने डीपीआई या जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं ये एडवांटेज एक इमर्ज हो रहा है। So universal transfers also avoid work disincentives often associated with targeted population. तो work disincentives वही है कि आप कितना extras या फिर like overtime work करने की बात कर रहे हो, तो वो शायद थोड़ा सा कम हो जाएगा burden. Common reaction to such a proposal is to question why the wealthy should also receive a basic income. हाँ, ये भी है। तो यूनिवर्सल में हम बेनिफिशरीज आइडेंटिफिकेशन किस बेसिस पे करने वाले, वेदर इट इज सोल गोइंग टू बी ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, या उसमें और कुछ भी होना चाहिए। सो एडवांस्ड इकोनॉमी में अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल्स दे पे टैक्सेस, रिसीव सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट जैसे चाइल्ड बेनिफिट्स और ऑल ऑफ दिस डिपेंडिंग ऑन देयर सर्कमस्टांसेस। तो इट नीड्स टू बी सर्कमस्टांशियल, and what ultimately matters is their net income. So similarly, India maybe wealthier individuals would pay for more taxes, so it is implemented more in progressive nature. मेरा जो स्टैंड पॉइंट रहता है विद रिगार्डिंग टू डायरेक्ट कैश गिविंग, कि आप काइंड देना चाहिए। दूसरा कि मोस्टली जो एक्सपेंडिचर होता है इट इज़ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल हेल्थ, अगर कोई गरीब परिवार से है, उनको घर में कैंसर हुआ है, तो जो भी सेविंग है सब खत्म हो जाता है। तो रादर देन फोकसिंग ऑन 75,000 रुपीज़, यू हैव टू फोकस ऑन कि आप कैसे इंश्योरेंस देंगे कि वो पूरा हो सके और पूरा कवर अप हो जाए, पूरा का पूरा। जो होता नहीं है 25%, कहीं कहीं पर 25% होता है, कहीं 50% होता है, बाकी फिर आप खुद यूज़ करो। तो वो भी एक चैलेंजेस है। हम्म। तो मेरा ये रहे कि आप डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड करिए रादर देन डायरेक्ट कैश। हाँ, मेरा भी यही सपोर्ट रहता है इसमें कि काइंड में होना चाहिए ज्यादा, बिकॉज डायरेक्ट टारगेट करते हैं। ठीक है। एसडीजी फोकस एंड इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट इश्यूज की बात हो रही है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टारगेट ईयर इज टू बी मेट बाय 2030। तो एसडीजी समिट हुआ on 18-19 September, was convened at United Nations headquarters to follow up review implementation of this agenda. So 17 SDG goals and summit of the future was the theme, and UNDP again human development report जो है that is published since 1990, तो India has been progressing। प्लस में चैलेंज या फिर जो क्रिटिकल एनालिसिस की हम बात करते हैं, तो जो इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और जो रिपोर्ट, सो हाउ वेदर वी हैव अगेन टॉक्ड अबाउट रिफॉर्मिंग दोज, क्या उनको वो कितना इफेक्टिव है इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद द करंट सिचुएशन, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कितना सूटेबल है, एक वो एस्पेक्ट रहता है। एंड राइजिंग पॉपुलेशन इज अनदर थिंग दैट इट whether we are talking again actually about the quality of life,
So human resources related to again quality or the demographic dividend as we talk about. The Human Development Index developed by UNDP, three dimensions hai: long and healthy life, which is measured by life expectancy at birth. Second है knowledge. तो इसमें expected years of schooling and mean years of schooling को हम calculate करते हैं. But ये तो क्वांटिटेटिव टर्म्स में हो गया, तो क्वालिटी ऑफ द नॉलेज कैसे हम टेस्ट कर रहे हैं, कैसे वो इनहांस हो रही है, वो हमें इससे नहीं पता लग सकता. थर्ड इंडिकेटर इज डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो यहाँ पे हम सिंपली, यहाँ पे भी एक क्वांटिटेटिव मेजर है पर कैपिटा इनकम, जिसको हम जीएनआई भी बोलते हैं. जीएनआई फिगर के बेसिस पे हाउ दैट इज चेंजिंग इज कैलकुलेटेड. तो जैसे पॉवर्टी में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हो गया, वो एक वाइडर और एक अडेप्टिव एंड फ्लेक्सिबल अप्रोच हो गया. So इसमें we are seeing कि it is really restricted in terms of quantity. So SDGs mentioned है different. 3 is related to good health, 4 is quality education, 5 is gender equality. So we should remember them. And India का जो HDI value है that is 0.64 as of 2023-24. So this has been improving. But जो बाकी countries हैं like they have better HDI ranks, चाहे मलेशिया हो, थाईलैंड, चाइना, श्रीलंका, इंडोनेशिया, भूटान और बांग्लादेश भी. But again, India, again, we have our own different unique challenges compared to these countries. So gender gaps की एक बात हो रही है, तो gender development report भी है. तो HDR also presents the gender development report and it measures disparities in human development by gender. So again, gender basis, this is also, we can say in a way, it is somewhere ingrained in our society. So we fail to somewhere distinct on the basis of merit and objectivity. तो gender के basis पे, चाहे वो employment हो या even employment में भी we have created like जैसे pink collar jobs है, तो वहाँ पे women or the females are more preferred, जैसे nursing या teaching हो गया. तो why on the basis of gender? Again we can say कि कुछ natural skills या qualities होती है, but ऐसे पूरा distinction करना is also not fair at the same time. And तो periodic labor force survey भी 2022-23 which is published by Ministry of Statistics and Program Implementation, which is MOSPI, states कि हमारा labor force participation rate for females is at 37%, working age 15 years and above के लिए. तो it was 23% in 2017-18, so it has definitely increased from 23% to 37%. But still there is huge gap in the female labor force participation, rural areas and urban areas also. So women, they are more, we can say, participative in terms of informal jobs हम बोल सकते हैं, चाहे वो MSME sector हो या SGZ, self-help groups हो, या even we are not again calculating their contribution as again home workers या homemakers. So this is a matter of concern, and income inequality again, because of again gender discrimination is another challenge that we see. So merit and quality should be the main thing, guys. We should focus upon. So India needs to address these gender development issues and increasing inequality in order to achieve the SDGs. सो चाहे स्टेम सेक्टर में वी आर सीइंग इंडिया में पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है, या वुमेन सेफ्टी की जब हम बात करते हैं तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स. तो वी हैव लाइक पॉश एक्ट है, तो उसकी भी हम इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं कि जो कमिटीज हैं, इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी, दे आर नॉट फॉर्मुलेटेड, दे आर नॉट, और इवन इफ अगर दे एग्जिस्ट तो दैट इज जस्ट नॉमिनल और ऑन पेपर, दे आर नॉन फंक्शनल ऑल्सो. So that is another aspect related to safety. Then we are seeing कि specifically after 2020 तो flexibility in working और जो उसमें adaptation हुआ like work from home. So उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं we have seen positive results. Rural areas में although we talk about कि digital divide है, तो डिजिटल डिवाइड की वजह से भी वी सी दैट वुमेन आर नॉट एबल टू कम फॉरवर्ड, या फिर वहां पे भी वी सी द एलिमेंट ऑफ पेट्रियार्की एंड देन वुमेन बीइंग मोर एसोसिएटेड, या फिर चाइल्ड मैरिज की हम बात करते हैं. तो these are certain kinds of pressures that we can talk about, or majorly we see that anemia, जो nutritional security है, that also hampers their health, so it impacts their skills and the time that they can devote to work. So Supreme Court upholds Section 6A of the Citizenship Act as valid law. So Constitution bench था, ruling के 4-1 majority judgment आई. So section says 6A जो section है says people from Bangladesh who arrived in Assam prior to 4th January 1966
would be deemed to be Indian citizen. मतलब they will not have to prove कि whether they are Indian citizens or not. So यहाँ पे dates का बहुत important role है. We should again have these in our mind. So deemed matlab they would be naturally considered to be Indian citizens if they have come before this date, for January 1966. So it permits immigrants from Bangladesh residing in Assam to secure Indian citizenship, and it has been stated valid. The principle of fraternity cannot be selectively applied to one section living in Assam while another, जिनको हम label कर रहे हैं as illegal immigrants. So a principle of fraternity is one important thing, and so it requires people of different backgrounds and social circumstances to live and let live. इसमें बात किया ना कि माइग्रेशन इज अ बर्डन, और वो एक तरह से ये भी बोलना चाह रहे हैं कि जो नेशन कैन अकोमोडेट इमिग्रेंट एंड रेफ्यूजी एट द सेम टाइम प्रायोरिटाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इक्विटेबल रिसोर्सेज एलोकेशन. Assam Accord was signed in 1985 between the Rajiv Gandhi government and state of Assam. उसको आसाम अकॉर्ड बोलते हैं. वो बात किया रहा था कि जो भी लोग 1966 के पहले आए बांग्लादेश से 1 जनवरी, उनको मिलेगा इंडियन सिटीजन. लेकिन अगर 66 या 71 के पहले है, 25 मार्च क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि 25 मार्च वॉज ऑफिशियल डेट व्हेन द पाकिस्तान स्टार्टेड ऑपरेशन सर्च लाइट अगेंस्ट द दिस सेंटर इन बांग्लादेश, अगेंस्ट द हिंदू माइनॉरिटी पॉपुलेशन हो गया. तो इनके बीच में जो लोग आए हैं, तो दे विल बी गिवन सिटीजनशिप बेसिंग और सर्टेन कंडीशन. क्या कंडीशन था? कुछ कुछ कंडीशन, उसमें से एक दो तीन पता है. पहला था कि आप 10 साल तक वोट नहीं देंगे, और आप एक तरह से उसके बाद ही आपको सिटीजन क्रिएट किया जाएगा. लेकिन अगर 25 मार्च के बाद आए हैं, तब आपको एक तरह से दे विल बी बार्ड फ्रॉम सिटीजनशिप. तो इसमें लिखा जैसे जैसे दो, सेक्शन 6A was included with the objective of reducing the influx of migrants. तो ये कैसे होगा? मतलब यहाँ पे मेरे को ये मतलब लॉजिक कि समझ आया. सिटीजन, अभी इंडिया में जो भी एक्ट है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर में चलता है. हम्म. सेक्शन 6 से जो है इट इज स्पेसिफिक टू द आसाम. दैट इज वाई उसके अंदर में, तो उस पर क्वेश्चन उठा था कि जो हम लोग एनआरसी ला रहे हैं आने वाले, लाए भी थे आसाम के लिए, जो इम्प्लीमेंट भी हुआ था, 19 लाख लोग थे भी नहीं सिटीजनशिप के अंदर में. तो क्वेश्चन उठा था क्या हम लोग एज अ कंट्री, हम लोग ह्यूमन राइट्स अचीव कैसे कर पाएंगे जब तक आप इमिग्रेंट और रिफ्यूजीज को आप क्रेटल नहीं करें. तब उस पर क्वेश्चन उठा था. तब फिर सेक्शन 6 पर क्वेश्चन उठता था. आसाम जो अकॉर्ड था, लिखा हुआ था ना, सेक्शन सी विच ट्रेसेस इज रूट्स टू द पॉलिटिकल सोल्यूशन ऑफ आसाम अकॉर्ड 1985. तो सिटीजनशिप एक्ट का टोटल, उसके अंदर में आसाम वाला रिलेटेड रिलेशन सेक्शन 6 है. उस पर जजमेंट आया 4:1 कि वो सही है. और एक तरह से बोला जा रहा है कि जो भी लोग आए हैं पहले 66 के पहले, वो इंडियन सिटीजन है. बीच में जो आएंगे 66-71 के बीच में, उनके पास एक कंडीशन दिया जाएगा, तभी वो इंडियन सिटीजन बनेंगे. 71 के बाद जाए, फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश जब बनता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश बन रहा था उसमें, जो वायलेंस था उसके कारण इंडिया में है, हम्म. रादर देन कि वो पहले है इंडिया में. तो इसके बारे में उनको वापस भेजा जाएगा, ऐसा था उस समय. लेकिन वापस भेज नहीं पा रहे. क्यों? क्योंकि बहुत दिक्कत है. तो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है आसाम में और आसपास रीजन में. इवन आसाम क्लासेस हुआ था 2003 और 2001 के आसपास में. अलग अलग जगह पर भी इन सेपरेटिस्ट एलिमेंट और एथनिक क्लासेस बढ़ते आ रहा है. दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रेगुलेट द सिटीजनशिप प्रोसेसेस. तो ये अच्छे डायरेक्शन है विद रिगार्डिंग टू एनआरसी. एनआरसी उनकी इंडिया में है नहीं. नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन. कौन है सिटीजन? आपके पास क्या प्रूफ है पासपोर्ट के अलावा? आधार कार्ड प्रूफ नहीं है सिटीजनशिप का, वो तो हम्म. रेसिडेंट प्रूफ हो गया, और इंडिविजुअल प्रूफ हो गया एक तरह से. पैन कार्ड कुछ कुछ, लेकिन एक हम लोग सब चीज यूज करते हैं. आधार कार्ड भी दिखा रहे एग्जाम में, पैन कार्ड भी दिखा रहे, और ड्राइविंग लाइसेंस भी भी दिखा रहे, है. पीडीएस भी. तो एक प्रूफ नहीं है कि एनआरसी एक वर्ड, एक छोटा सा कार्ड होगा, डेबिट कार्ड जैसे छोटा सा होगा, उसमें नंबर रहेगा, जैसे सीरियल नंबर रहेगा, वो आपका प्रूफ रहेगा. तो वो नहीं हुआ अभी तक में. उसके के लिए आपको एनपीआर चाहिए, एनपीआर पॉपुलेशन रजिस्टर चाहिए. उसके पहले आप ओवरऑल सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट चाहिए, क्योंकि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में ये सब इंक्लूडेड है कि जो लोग इमिग्रेंट आए थे 1970 के पहले, उनको करना चाहिए. तो ये ओवर कंडीशन. तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 इज अ बेस ऑन विच पूरा जो प्रोसेस है सिटीजनशिप का वो चलता है इंडिया में. राइट. ठीक है, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट.